رمضان آنا ہے تو افطاری لے کے آئے، سحری لے کے آئے، تیوہاری سمجھے لے کے آئے، اس کے نام پر پستہ بادام بادام اخروٹ کاجو پھر یہ وہ بھی بے شمار کی سامان آ جائے لوٹ رہے ہیں لوٹے والے نہیں بلکہ سامان کے لوٹیرے ہیں آپ بات نہیں اس سے کہو کہ بھیا میرے گھر پر سمجھے بھی ہے، میرے گھر پر افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، میرے گھر کو کچھ کے مت آؤ، یہ رواج بن گیا ہے، اس لیے جانتے نہیں کہ یہ رواج میرے توبہ دینا جائے یہ تمہیں رواج کے طور پر دے رہا ہے ہدیہ کما رہے گا تو منظور دے رہا تو ہدیہ نہیں کہہ سکتے رسم بن جاتی تو اجازت نہیں ہوتی اس کو منع کرو سمجھا اور دیکھو ایک حدیث سن لو فرماتے ہیں کہ جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی تم پر حکومت کرنے والے بھیجے جائیں گے وہ پارٹی اس کو چھوڑ دو اور جب تم خود ایک دوسرے کا خون پیو گے تو تم پر خون پینے والے مسلط کرے جائیں گے کسی کی غریبی دیکھے اختلاف کے اختیار اپنی بالا ابھار لے جائے جوڑ کو بیٹھے لے جائے پردے مانگ کر لگا ہے ہم نے بھاری کرتے کرائے جا رہے ہیں قلم نہیں ہے دل کے اندر حدیث شریف میں یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریں گے دیوان کی سن رہی ہے منہ سے معاملہ جب خود کرے نہ اشارہ کرے نہ بجوریت کر رہا ہے یہ سب حرام ہے کیا ہے حرام اپنی خوشی سے پوچھتے تھوڑا بہت بدل تم تھوڑا بہت دو زیادہ کو بڑا تو لڑکی والی ماحول بڑا زیادہ کو بڑا ڈیمانڈ کرنا معاملہ یہ ہے نسبت ناجائز گناہ تحقیقات لینے ٹکائی لینے فرمائی لینے کی باتیں اور رسوم و رواج کو مٹاؤ لوگوں مسلمان ہو بات کو مت بھولو آج کل ہلدی کرتے ہیں ہلدی ہونے بھی نہیں کرتے بڑھاپا آ گیا اس کو لوگ نہیں نہیں ہلدی نہیں رکھتے نہیں سنی صحیح نہیں سنی نہیں سنی تو اچھا یہ گناہ پینے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں عورتیں ہاتھی کے روم میں نام پر یہ ٹھنڈے کو پہنے جاتے ہیں لڑکی والے کیا کرتی ہے پتہ نہیں والا ہلدی کرتی کر رہی یہ غیر مسلم آئی اگر کپڑے نہ ہو تو اس کو آنے پڑتے ہیں یہ بات چل رہا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بارات کا استعمال کرتی ہیں بارات جب آتی ہے شادی گھر میں تو اس کو ہاتھ پر ڈالنے کے لیے استعمال کرنے کی لڑکی آتی ہے اس میں خود دیکھا بھی نہیں اس قدر سے ہے آگے کرنا کرو یہ بھی سنا میں نے کہ ایک جگہ لڑکی والوں کا طے کیا کھانا پہلے میں لگ گیا کہ تمہیں ایسا لگا کہ چراغ ہے تمہاری سنتوں میں خلاف طے کر رہے ہیں اس طے کر کے اللہ کے تم کو تکلیف دے رہے کہ میری سنت یہ تھی کہ
चैन बार भाई आपको ने एक दो रुपये बनता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बजे बर्बादी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बजे बर्बादी सीधे कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार खुली हमें करनी है शाइन शायद बदला तेरा ना जोई अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार खुली तो ये रस्मी बताओ ये कैसे वाले खाने की बैठ के खाना खाना सुन्नत है और खाने की नाबदली मत करो तो मुसलमानों में इस्लाम वाले की बात हम लगी नहीं रखते हदीस शरीफ में है एक मसला हुजूर के दरद और में रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिर गया अल्लाह के रसूल ने खून के साफ कर दो भरी आज सबसे कर देख रही उसने देखा ये देख रही तो फरमाया आयशा ये रोटी है ये अल्लाह का रिज़्क़ है जब किसी कौम को उठता है तो इंसानी इसकी कदर करो आज रात को क्या होगा देखा गरम ना ठंडी हुई गरम अपने ब्रांड को नीचे तक पड़ी हुई मिलन देखने को मिला ये नामदरी खाने की अल्लाह को नाराज करना है उसकी नामदरी और ये एक समझ से बिल्कुल मिल गई अपने इस्लाम में गोटा आटा खाना है सुन्नत और मैदा खाना है बिदअत इन इस्लाम में मैदा खाना सुन्नत के खिलाफ है और गोटा आटा खाना क्या है सुन्नत तुम दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लो तो कोई नहीं बताएगा कि मैदा महीन आटा नुकसान देता है और मोटा आटा फायदा करता है डॉक्टर आज कह रहे हैं पैगंबर इस्लाम पहले उनके तरीके का एक हदीस है हमारे साथ एक सहाबी हैं उनके हदीस वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हम लोग सब्जी को नहीं जानते सब्जी नहीं जानते लेकिन पूछा कि आप जौ का आटा कैसे खाते जब बच्चों को तो फरमाया कि आपको भूख का साफ पड़ता शाम को उसको मिली अब मैंने ये सुना कि मैं मुस्लिमों के होटलों में आटे की रोटी बन रही है वो तमाम हो रहा है मेरे लिए होटल में एक शादी हाथ में खाना खाना गया था तो ठेकेदार साहब ने खाना खिला रहे आने वाले थे खाने वाले मैंने उनसे पूछा जो आटे की रोटी क्यों नहीं बनाते हो तो कहने लगे कि वो शायद नहीं आती है चमक को भरना है अगर चमक कब सकती है जब तक आंखों के सामने चमक है जब मुंह में चलेगी तो तब कानून को समझा तो सौ पागल लोगों से कौन होगा ये सामने जादू करने मेरे कहने के ऊपर एक तरकीब ने आटे की रोटी बनवाई मिलाया खाया तो लोगों ने बहुत शौक से खाई और ठंडी होकर तो खाई जा रही थी समझे प्राण की कंपाउंडिंग की दवा ये दवा बन नहीं है जब यहाँ पर दवा है गरम खाई जाएगी तो आत्मा को तकलीफ हो जाएगी आप आगे नहीं है इतना मिलेगा अपनी बात नहीं करना चाहिए लेकिन इतनी बात तय है कि हम लोग अपने दीन की उन बातों को बिल्कुल छोड़ जा रहे हैं और एक बात और मैं कि बात कर लूँ खत्म करता हूँ अल्लाह तौफीक दे जवानों को हटाओ और घरों में भी पूरी बनाते हो और जो आपको बनाते हैं ना पूरी दवा की रोटी जिस सब में
अपने इस्लाम में एक मसला ये है कि रात को इशा की नमाज के बाद कोई जरूरी बात हो तो करे, अब कोई जरूरी काम हो तो करे, वरना नमाज पढ़े हो जाए। इशा के बाद जल्दी बोला अच्छी बात है, कोई जरूरी काम हो तो करे। बिना वजह इशा के बाद जानना ये मसला है। लगे में मौजूद है इशा के बाद गए लोग बातें करना, फालतू बातें करना, पूजा करना। आपको डॉक्टर को पूछ रहे हो, वो भी ये कहते हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना सेहत के लिए मुफीद है। देर तक जागना देर से उठना सेहत के लिए नुकसानदेह है। शरीर में क्या डॉक्टर भी ये कर रहे हैं और अपन भी कर रहे हैं, और डॉक्टर भी कह रहा है हदीस में क्या है काम है ये करो मतलब लेता है और काम करवाना। अल्लाह के रसूल को बगैर इशा की नमाज पढ़े सोना पसंद नहीं था, बस कलाम हादा और इशा की नमाज के बाद आपको बातचीत करना पसंद नहीं। मोमिन निशान ये है कि रात को कोई जरूरी बात हो तो करे, मगर इशा की नमाज पढ़े जल्दी सो जाए तो फजर की नमाज जमात से अदा करे। तो फजर की नमाज जो नमाजी होगा पक्का सच्चा नमाजी, जिसका फजर की नमाज की फिक्र होगी और रात को इशा के बाद डॉक्टर नहीं मिलाएगा, उसके दिमाग में फजर की नमाज है, तो मुझे जल्दी सो करके जल्दी उठना है तो नमाज पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह, उसे फिक्र होगी तो पढ़ नहीं अभी सभी रात की बराबर कर रही है। ये बताऊं क्या है, ये मुसलमान बोला हुआ नहीं, मुसलमान बोला गया। अब बोला गया पैसा हो जाता, ये क्या बोला अच्छा बिगड़े हुए तो समझ आते हैं, समझा देता है, और जब बोला जाता है उसका इलाज को पता बोलने में क्या होगा, जब बोला जाते हैं तो क्या करा जाता है, बनाते हैं शादी हालों में ले ले पूरी रात जल रहे हैं, हमारे टाइम पड़े हो रहा है, इससे 7 बजे हमारी तरफ निकल जाएगी माहौल रेडी में हमारे डांटे में निकल रहा है सवेरे को 7 बजे बुलाने के आ रहे हैं, 12 1 बजे बारात लेके जा रहे हैं। मानो को मैं कह दो ना मानो तुम जाओ, ऐसा बाहर ले जाओ, गर्मी लगती है बाहर थोड़ा टहला लाओ। मानो पर किसी के शैतान कराया शैतानी माहौल है, बाहर घुमा लाओ थोड़ा और किसी दिमाग को मिटाने के लिए हिम्मत करना पड़ती है। ये नहीं है कि क्या करें ऐसा ही चल रहा है, हर जगह को हल्की चल रही है, रात में इस्तेमाल कर देंगे, खाने तक रात की चल रही महिला चल रही है, रात की बातें हो रही थी। अरे जिसने रात की शुरू करी थी तो उसकी तो चल गई। देखें आप पैगाम की दाव देखें
पूरे रात में वो करीब 12 बजे का मैं तो जाऊंगा नहीं 12 बजे, अभी भाई नमाज पढ़ के आगे कब घंटे के मामला तकरीबन मैं हो जाता हूँ तो सुबह उठने की नमाज में 1 घंटा पहले उठता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ जैसे रिपोर्ट जवानी में बिजली चलते रात को रात से करे, लेकिन उन दिनों में मैं रात को जब करके नमाज पढ़ लेता था।